Assalamu alaikum everyone. Today we start online lectures about chemical bonding. First we define what is chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग असल में दो एटम्स जो डिफरेंट काइंड्स के भी हो सकते हैं और सेम काइंड्स के भी हो सकते हैं, उनके दरमियान एक फोर्स है जो दोनों एटम्स को बाइंड करके एक स्टेबल पोजीशन में अरेंज करती है। ये कानून है यूनिवर्स का कि हर चीज़ इस दुनिया में अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है। तो यहीं पे एक फोर्स जिसे हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, इसका मकसद भी दो एटम्स जो कि सेम काइंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं, वो उन दोनों एटम्स को आपस में बाइंड करती है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड है क्या। द अट्रैक्टिव फोर्स बाय मीन्स ऑफ विच different and same kind of atom are held together in stable arrangement is called chemical bond. After the definition of chemical bond, we discuss about the examples related to chemical bond. First example is ionic bond, second example is covalent bond, third example is dative covalent bond. The second name of dative covalent bond is coordinate covalent bond. First we discuss what is ionic bond. आयनिक बॉन्ड असल में दो ऑपोजिट चार्ज आयन के दरमियान एक फोर्स को कहते हैं, जो इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है, फॉर्म इन विच वन बॉन्डिंग एटम डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली टू अनदर एटम। इन सिंपल वर्ड हम ऐसे कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें दो बॉन्ड बनाने वाले एटम में से एक एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली 100% जो है दूसरे एटम को डोनेट कर देता है। तो ऐसी टाइप्स में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड। जब NaCl का मालिक्यूल बनता है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है और इन दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड है। तो एक्चुअली हम देखना चाहते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड बनता है इसमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो उसके लिए सबसे पहले चेक किया जाता है रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम इज़ अ मेटल, क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल। इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज़ ionic bond is always formed between metal and non-metal. Sodium is a metal, chlorine is a non-metal. Then the bond between sodium and chlorine is a ionic bond. It is a direct relation between sodium and chlorine for the formation of sodium chloride. Now we discuss the different steps in which sodium chloride form ionic bond in its opposite charged ion. First one we discuss about the ground state electronic configuration of sodium and chlorine. Sodium have 11 atomic number, means it has 11 electron. The ground state electronic configuration is school, public school. 1s accommodate 2 electron, 2s accommodate 2 electron, 2p accommodate 6 electron and 3s accommodate 1 electron. It means that sodium has only 1 electron in its valence shell. Now we discuss the ground state electronic configuration of chlorine. Chlorine have 17 atomic number, mean chlorine have 17 electron. First S accommodate 2 electron, 2s accommodate 2 electron, 2p accommodate 6, 3s accommodate 2 electron and 3p accommodate 5 electron, means chlorine have 7 electron in its valence shell. Chlorine required 1 electron to accommodate 8 electron for its stability. Now the next step is the formation of opposite charged ion. Sodium being metal lost 1 electron from its valence shell and become a positive ion. The second step is in the formation of opposite charged ion. Chlorine being a non-metal accept electron and form negative ion, that the name is chloride ion. The next step in the formation of sodium chloride is the combination of opposite charged ion. इन दो स्टेप में जो हमारे पास ऑपोजिट चार्ज आयन बने हैं, द नेक्स्ट स्टेप जो है इन दोनों आयंस का आपस में कंबाइन होना है। सोडियम और क्लोरीन आयन दोनों कंबाइन होते हैं और उसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड का एक मालिक्यूल जो है वो डेवलप होता है। तो इसमें जो डायग्राम है सोडियम क्लोराइड में, सोडियम जो है यहाँ इक्वेशन के मुताबिक ये शो करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, क्लोरीन को। तो डायग्राम के मुताबिक जो है, जो हमने एरो शो किए हैं उसके मुताबिक सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन की तरफ डोनेट किया जा रहा है। और डायग्राम के मुताबिक ये भी शो होता है कि जो सोडियम है, सोडियम आयन, इसका साइज़ जो है क्लोराइड आयन के मुकाबले में स्मॉल है। इसकी रीज़न ये है कि जब भी
एक मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो चांस है कि उसका वैलेंस शेल लॉस हो जाता है। वैलेंस शेल लॉस होने से चांस सेकंड स्टेप ये होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आयन है उसका साइज पहले न्यूट्रल एटम के मुकाबले में रिड्यूस हो जाता है। और जो नेगेटिव आयन है जिसे हम क्लोराइड आयन कहते हैं, उसका साइज जो है पेरेंट एटम से बड़ा होगा। मींस क्लोराइड आयन का साइज क्लोरीन एटम से बड़ा होगा। रीज़न ये है कि जब किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसका नया शेल जो है वो अकोमोडेट में उसमें इजाफा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज जो है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस की फोर्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से साइज़ एक्सपेंड करता है। यही रीज़न है कि सोडियम का साइज़ जो है वो छोटा है और जो क्लोरीन है इसका साइज़ बड़ा है। जो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड की, ये भी एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड की। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन होगा, जिसके नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मालिक्यूल बनेगा। ये तो है एक डायरेक्ट रिएक्शन जिसमें मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड के मालिक्यूल बन जाता है। तो हम स्टेप वाइज देखते हैं कि इसमें प्रोसीजर क्या यूज़ होता है जिसकी वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। G.S.E.E मीन्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ हमने दो एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम दैट हैव 12 एटॉमिक नंबर, मीन्स मैग्नीशियम हैज़ 12 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम है उसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से क्लोरीन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं NaCl में कि उसके पास 17 एटॉमिक नंबर है और 17 इलेक्ट्रॉन है। 1s में 2 आएंगे, 2s में 2 आएंगे, 2p में 6, 3s में 2 और 2p में और 3p में हमारे पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आएंगे। तो इसके देखा जाए तो जो क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए, और सोडियम और मैग्नीशियम जो है उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम बीइंग मेटल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाती है, मैग्नीशियम आयन, और नीचे जो है क्लोराइड जो क्लोरीन है बीइंग नॉन मेटल 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 नेगेटिव आयन बनाती है। नेक्स्ट स्टेप इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिट चार्ज आयन। नेक्स्ट स्टेप में जो ऑपोजिट आयन जो बने हैं उनका कम्बिनेशन होता है, उनका मिलाप होता है, जिसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में मैग्नीशियम और से नीचे वाले स्टेप में जो क्लोराइड आयन बने हैं दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और उसके नतीजे में मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मालिक्यूल जो है वो डेवलप होता है, और इन दोनों के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होगा। और उसको अगर हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो मैग्नीशियम जो है जो कि स्मॉल साइज है पॉजिटिव आयन का, और उसके 2 क्लोराइड आयन जो हैं उसके लेफ्ट और राइट साइड पे मौजूद हैं। तो जो एरो है उसकी डायरेक्शन जो है मैग्नीशियम से लेफ़्ट की तरफ है, और यहाँ से बात करें तो मैग्नीशियम से राइट की तरफ है। मतलब मैग्नीशियम से क्लोरीन की तरफ डायरेक्शन शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मेशन में मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने पास नहीं रखे, उसने क्लोरीन एटम को ट्रेवल किए हैं, उसे डोनेट किए हैं ताकि एक आयनिक बॉन्ड बन सके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड असल में होता क्या है। कोवलेंट बॉन्ड जो है असल में 2 एटम्स के दरमियान भी एक फोर्स है, लेकिन ये फोर्स आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है कि उसमें एक एटम जो है मुकम्मल तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, जो डोनेट करेगा। कोवलेंट बॉन्ड में कोई भी एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। असल में दोनों एटम्स जो हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर करते हैं, और इस शेयरिंग के नतीजे में जब 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन है अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। Now we discuss about the types of covalent bond. There are 3 types of covalent bond. First one is single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Now we discuss one by one types of covalent bond. First type is a single covalent bond. Single covalent bond में 2 एटम्स के दरमियान जो है सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं। मीन दोनों एटम्स जो हैं एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करते हैं और उसके नतीजे में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। तो डेफिनेशन है
अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जब दो एटम्स के दरमियान सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इस्तेमाल होगा, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है कि इसको जाहिर कैसे करते हैं, तो दो एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर करने के लिए हम एक सॉलिड स्ट्रेट लाइन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्ड की, तो हम एग्जांपल में देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का एक एटम जो है उसे अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम भी जो है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन का एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया हुआ है और दूसरे हाइड्रोजन के एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्रॉस से शो किया हुआ है। जब दोनों एटम्स जो हैं बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं, जिसके नतीजे में उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसको हमने कहा था कि सॉलिड सिंगल स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में भी दो एटम्स के दरमियान अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड में दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन पेयर यूज़ होते हैं। दो पेयर का मतलब है चार इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं और हर एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंट्रीब्यूट करेगा इस बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसको हम डिफाइन करते हैं अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू पेयर मीन फोर इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है डबल कोवलेंट बॉन्ड को ऑलवेज दो एटम्स के दरमियान दो लाइनों से जाहिर किया जाता है। तो इसकी जो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कैसे? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, एक एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और उनको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन के दो एटम्स जब आपस में करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो दोनों ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और जब दो दो इलेक्ट्रॉन मीन 4 इलेक्ट्रॉन मीन 2 पेयर जब यूज़ होंगे तो उसके नतीजे में उनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है वो बन जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं थर्ड टाइप जो है वो है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में दो एटम्स के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 पेयर जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं और हर एटम इस बॉन्ड बनाने में तीन इलेक्ट्रॉन्स है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसकी डेफिनेशन है अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है दो एटम्स के दरमियान 3 लाइनें हम ड्रा करेंगे जिसकी मदद से उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अगर हम उसकी एग्जांपल की बात करें तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वैलेंस शेल में और उनको अपना ऑक्टेट मीन ऑक्टेट रूल ओबे करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की अशद ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन के दोनों एटम्स जो हैं उनके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब उनको बॉन्ड बनाने के लिए करीब लाया जाता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, तो दोनों नाइट्रोजन के एटम्स हैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर करते हैं। जब हम म्यूचुअली शेयर करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन तो उसके नतीजे में उनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से इसकी जो सारी टाइप्स हैं कोवलेंट बॉन्ड की वो हम पढ़ चुके हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है केमिकल बॉन्ड की वो है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड का एक और नाम भी है, मीन सेकेंड नेम वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट हम इसको डिफाइन करते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क क्या होता है। जब दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनाने वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दूसरे एटम को ट्रांसफ़र कर देता है या उसे डोनेट कर देता है तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो उसकी डेफिनेशन है अ बॉन्ड इन विच one bonded atom donate its electron pair to another atom is called dative covalent bond या फिर से हम कहते हैं coordinate covalent bond। इस बॉन्ड में जो हम दो तरह की वर्डिंग हम यूज़ करते हैं वो है एक डोनर और एक एक्सेप्टर। इस बॉन्ड बनाने में वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी दूसरे एटम को डोनेट करेगा या उसे ट्रांसफ़र कर देगा उसे हम कहते हैं डोनर, मतलब देने वाला। और वो एटम जो इस बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर, क्योंकि वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा होता है।
तो इसी तरह से इस बॉन्ड के बनने में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसका नाम होता है अडक्ट। अडक्ट का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ चुके हैं, एडअप हो चुके हैं, उसके नतीजे में जो उसमें प्रोडक्ट बनी है उसको जनरली नाम दिया जाता है अडक्ट प्रोडक्ट। तो इस तरह से इस डेफिनेशन को और इस दो टर्म्स को, डोनर और एक्सेप्टर, हम एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि अमोनिया और हाइड्रोजन आयन, इनके दरमियान जो रिएक्शन है वो असल में डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को वेरीफाई कर रहा होता है। हाइड्रोजन आयन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। और इसी तरह से अमोनिया में मौजूद जो नाइट्रोजन का एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑलरेडी मौजूद है, जो किसी दूसरे एटम को या किसी दूसरे आयन को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे अमोनिया में मौजूद नाइट्रोजन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है, जिसके नतीजे में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आयन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, उसे हम कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। और इस पॉजिटिव आयन को हम यहाँ पे शो करते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। और इस प्रोडक्ट का जो नाम है अमोनियम आयन, और इस प्रोडक्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH4+ अमोनियम आयन। इसमें जो डोनर है वो अमोनिया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहा है, और हाइड्रोजन आयन जो है ये एक्सेप्टर है, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा होता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसे हम कहते हैं अडक्ट प्रोडक्ट, दैट इज अमोनियम आयन। द सेकंड एग्जांपल ऑफ डेटिव कोवलेंट बॉन्ड इज रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड is an electron efficient molecule and boron trifluoride is an electron deficient molecule। इलेक्ट्रॉन इजाफी मौजूद हैं जो वो डोनेट कर सकता है। इसी तरह से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन वो एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मीन इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसमें सलाहियत इलेक्ट्रॉन लेने की। तो इसके नतीजे में जो अमोनिया है इसमें मौजूद नाइट्रोजन वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देता है बोरॉन को, और उसके नतीजे में नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है, उसे हम कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इस प्रोडक्ट का नाम है अडक्ट प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के मिलाप से बनी है।